Hello students, today we will be beginning with customizing plots. Customizing plots means we can change the certain properties of the plot so that the data or the plotting can be viewed like we want. We can customize our plots by changing the plot properties. It allows us to control how the data should be represented. For example, we can change the color of the plot, we can change the line style, we can decrease or increase the line width, we can add labels, titles and legends in the plot. So now begin with first option, first attribute. First attribute, we have color attribute. Color attribute is an attribute which is used to change the color of the plotting. By default, whenever you make any plot or a graph, then Matplotlib will choose a by default color which is a blue color. However, you may have a certain color you want the plot to be. Matplotlib allow us to specify the color for the graph plot. And this can be done with the help of color attribute. It is the attribute which is defined in the plot function itself whenever we are making the graph. Color attribute एक ऐसा attribute है जिसके help से आप अपने plot का, अपने graph का color change कर सकते हैं. Matplotlib by default blue color plotting करता है, but you can change according to the color you want, and which is possible with the help of color attribute. Suppose we have the example, we have like this, we have month, two lists we have, in one is the month and other is the sales. In the month list we have 4 months, and in the sales we have 4 sales here for each month. Now we do the plotting for this. I write plt.plot sales comma month comma color is equals to R. R means red here. या तो आप पूरा red लिखिए या आप उसका पहला कैरेक्टर लिखिए. Now whenever I show the plot, then the line color, the line chart will be shown in red color. बट पहले बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं. देखिए, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये एक ब्लू लाइन आपको नज़र आएगी. और whenever you give the R character in the color attribute, then we have the red color line. You can also give R directly here. You won't have to write color attribute. आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कलर एट्रीब्यूट लिखना है इन केस ऑफ लाइन प्लॉट. सो आप अगर आर यहाँ लिखेंगे तो भी वो रेड कलर का वहाँ पर दिखाई देगा. बट इन केस ऑफ बार यू हैव टू मेंशन द कलर एट्रीब्यूट हेयर. सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस इन अ बार चार्ट, देन आई राइट कलर इक्वल्स टू आर. If you don't give color here, then in this case it will give an error. So हम देखते हैं इसे प्रैक्टिकली. अब प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा import matplotlib dot pyplot as plt. Then I write month equals to, and I had taken 4 months here, then February, then I have taken March, and then April. Now the next list, which is of sales, in this I have taken 4 sales, fine. Now I plot this plt.plot and I write sales comma
नाउ आई राइट plt डॉट शो. अब देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अभी मैंने कलर यहाँ मेंशन नहीं किया. आप जैसे ही रन करेंगे तो इट विल कम इन ब्लू कलर, बट इफ आई मेंशन R then it will come red. The color of the line will be red. Either you mention R or either you mention color here. Fine. But if it is a case of bar, then if I write bar here and I run this, it will give an error. Fine. In this case we have to mention color attribute. Now if I run this then the bar will be printed. पहले आप यहाँ पे मंथ लीजिए, देन प्रॉपरली बार यहाँ पर आएगा, मंथ कामा सेल्स. आप इसे रन कीजिए, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारा बार यहाँ पर आ रहा है रेड कलर का. और अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ रेड कलर को तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो बार है वो आएगा ब्लू कलर. सो आई होप दिस इज़ क्लियर विद दिस. कलर एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया है. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट. पहले हम देख लेते हैं कि कलर हमारे पास कौन कौन से हैं. कलर हमारे पास B आप लिख सकते हैं या आप ब्लू लिखिए, G आप लिख सकते हैं या आप ग्रीन लिखिए, सेम रेड, क्रेयन, मजेंटा, येलो. ब्लैक के लिए आप K लिखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ओनली फॉर ब्लैक कलर. यू कैन स्पेसिफाई द कलर्स इन द वायर वंडरफुल वेज इंक्लूडिंग द नेम्स. आप या तो नेम लिख सकते हैं या आप उनका पहला कैरेक्टर लिख सकते हैं, और यू यूज़ द हेक्स स्ट्रिंग, क्योंकि कई कलर ऐसे होते हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम बट हम चाहते हैं कि वो उस टाइप का कलर हो. तो हैश लगाकर आप जो है 6 कैरेक्टर्स में, चाहे वो 11AA हो या 00AA हो या कोई भी कॉम्बिनेशन हो लेटर्स का और नंबर्स का, तो उससे भी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर को प्रिंट करा सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट कलर एट्रीब्यूट. नाउ वी हैव द लाइन विड्थ एंड द लाइन स्टाइल. लाइन विड्थ एंड लाइन स्टाइल क्या होता है? अभी जो हम लाइन देख रहे हैं हमारे इसमें जो आई थी लाइन, ये हमारी सॉलिड लाइन थी. बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड लाइन प्रिंट होगी, बट इफ़ आई वांट टू चेंज दैट द लाइन शुड बी dotted or a dashed or a dash dot, then in that case we can change the style of the line. The style of the line is the style of grid lines. So आप अगर solid लेते हैं तो solid के लिए आप ये वाला कैरेक्टर लगा सकते हैं. dotted आप पूरा लिख सकते हैं या dotted की जगह आप ये कोलन लगा सकते हैं. डैश अगर आपने लेना है तो डैश की जगह आप ये लगा सकते हैं. डैश डॉट अगर लेना है आप डैश डॉट भी लिख सकते हैं. आप डैश और ये डॉट का जो कैरेक्टर है वो भी आप बना सकते हैं. ऐसे ही लाइन विड्थ है. लाइन विड्थ इज़ यूज टू इंक्रीज द विड्थ और डिक्रीज द विड्थ. लाइन विड्थ जो है आप LW भी लिख सकते हैं या आप पूरा लाइन विड्थ लिखकर भी उसे कर सकते हैं. लाइन विड्थ जो है वो लाइन की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ होती है. तो हम इसे कर कर देखते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिया और यहाँ पर देखते हैं हम लाइन का विड्थ चेंज करते हैं. यहाँ मैंने लिया सबसे पहले लाइन स्टाइल. लाइन स्टाइल मैंने यहाँ पर कैरेक्टर की फॉर्म में दिया, मतलब कि हाइफन और डॉट मैंने यहाँ दिया. नाउ इफ़ आई रन दिस, अब देखिए लाइन कैसी आ रही है हमारी. लाइन हमारी डैश और डॉटेड आ रही है. ठीक है, इसकी जगह पे अगर मैं लिखती हूँ डॉटेड, मैं ऐसे लिखती हूँ, बजाय कि मैं कोलन दूँ मैं ऐसे लिखती हूँ. मैंने इसे रन किया, अब देखिए हमारी लाइन डॉटेड में आ रही है. आप इसको डॉटेड कैरेक्टर की फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो भी अगर आप रन करेंगे तो ये ऐसे ही इसको देगा. सो दिस इज़ हाउ द लाइन स्टाइल कैन बी चेंज. नाउ इज़ द line width. Now we have line width. I have taken this as 5 and if I run this ये देखिए इसकी जो width है वो कितनी ज़्यादा हो गई है. आप यहाँ पर अगर 2 करते हैं तो देखिए ये कम हो जाएगी. मैंने इसे 2 किया तो ये कम हो गई. So line width is used to increase or decrease the width of the line. Fine. आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लाइन स्टाइल लेना है डॉटेड और आपको कलर लेना है मर्जेंटा, तो आपको ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली यहाँ पर मैंने मान लीजिए हाइफन और डॉट दिया है
तो अगर मैं डायरेक्ट इनको लिखती हूँ, मतलब कलर और लाइन स्टाइल को अगर मैं कैरेक्टर की फॉर्म में ऐसे देती हूँ और फिर रन करती हूँ, तो भी हमारा जो कम्बिनेशन है कलर और लाइन स्टाइल का वो भी वर्क करेगा. सो आप इनके कम्बिनेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं. फाइन. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट. दिस इज द एग्जाम्पल विच आई हैव शोन यू. फॉर बाय डिफॉल्ट द लाइन स्टाइल इज सॉलिड. दिस इज द डॉटेड and this is the dashed line style. Then we have marker size, type and color. Now marker क्या होता है? जितने भी लाइन को ड्रॉ करने से पहले हम पॉइंट्स लगाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं. हम देखते हैं कि हमारा जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो जो पहले हम पॉइंट्स डालते हैं that is a marker. In Matplotlib, the plotted points are called marker, which are useful when our plot has just a few plot points and we want to mark them off. जब हम चाहते हैं कि हमारे points जो हैं वो नज़र आए हमें कि कहाँ कहाँ हमारे points हैं, then we use the marker. So by using the marker type, we can change any of the marker. We can have the oval shape, we can have the triangular shape marker, we can have the diamond shape marker. Also we can increase or decrease the size of the marker. हम marker का size बढ़ा और घटा सकते हैं. and can also change the edge color also with using marker size and marker edge color attribute. अब देखिए marker क्या है. यहाँ हम चले और यहाँ पर मैंने ये कोडिंग फिर से ले ली और यहाँ पर मैंने किया मार्कर. सबसे पहले मैं मार्कर आपको दिखा रही हूँ और यहाँ मैंने डी ले लिया. डी मीन्स डायमंड शेप मार्कर. अब मैंने इसे रन किया. ये जो मेरी लाइन पहले प्रिंट हो रही थी वो प्लेन प्रिंट हो रही थी, उसमें पॉइंट्स को मार्क नहीं किया हुआ था. अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को मार्क कराया है. देखिए सारे डायमंड, डी यानी डायमंड शेप, डायमंड शेप में ये सारे के सारे प्रिंट हो गए हैं. अब अगर यहाँ पर मैं ओ देती हूँ, दिस विल बी चेंज टू शेप सर्कल. अब ये सॉलिड सर्कल की फॉर्म में आ गए हैं. आप यहाँ पर 1 देते हैं तो शेप दूसरी हो जाएगी. देखिए ये दूसरी शेप होगी पर छोटी छोटी नज़र आ रही है, हमें इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. अब हम आते हैं मार्कर साइज़, और मार्कर साइज़ मैंने यहाँ 9 ले लिया. नाउ आई रन दिस. ये देखिए अब आपको थोड़ा सा नज़र आया होगा. ठीक है, आप इसको और बढ़ा सकते हैं. मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसे 12 कर दिया. नाउ आई रन दिस. तो देखिए थोड़ा और साइज़ बड़ा हो गया. सो वी कैन टेक एनी टाइप ऑफ मार्कर, वी कैन टेक साइज ऑफ द मार्कर. नाउ द मार्कर एज कलर. अब इसका कलर अगर चेंज करना, अभी रेड कलर में आ रहा है, मुझे इसका कलर चेंज करना है. मार्कर एज कलर इक्वल्स टू मैंने ले लिया ग्रीन. ओके, अब मैंने रन किया तो देखिए ग्रीन कलर की इसकी एज का कलर जो है वो ग्रीन हो गया. सो यू कैन टेक एनी अदर ऑल्सो. मान लीजिए मैंने यहाँ पर डी ले लिया फिर से. देखिए इसका डायमंड का जो शेप का जो आ रहा है ये एज कलर बीच का रेड ही है, लेकिन बाहर का सारा जो है वो ग्रीन हो गया. सो बाय दिस वी कैन ऑल्सो चेंज द मार्कर साइज एंड द मार्कर एज कलर. नाउ वी have the next attribute, title, label and legend. A lot of time the graph can be self-explanatory, but having a title to the graph, labels on the axis and a legend can explain everything about the graph. So for giving title, we use the title attribute for every plot. जब हम plot बनाते हैं तो प्लॉट अपने आप में ही सब कुछ बताता है, सब कुछ दिखा देता है कि क्या हो रहा है. जैसा कि अब हमने ये प्लॉट बनाया था तो इसमें सब पता चल रहा है कि यहाँ पर मंथ आ रहे हैं, यहाँ पर सेल्स आ रही है. बट हम उसे मेंशन भी कर सकते हैं, हम एक इसको हेडिंग भी दे सकते हैं प्लॉट को. उसके लिए हम जो है टाइटल, लेबर और लीजेंड को पढ़ेंगे. सबसे पहले टाइटल होता क्या है. अ टाइटल इज़ अ मीनिंगफुल नेम गिवन टू द प्लॉट. टाइटल एक मीनिंगफुल नाम है जो किसी प्लॉट को आप देते हैं. लेबल्स मीनिंगफुल टाइटल्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के. और उसके बाद आता है लीजेंड. लीजेंड से पहले हम टाइटल और लेबल को देते हैं. तो देने के लिए देखिए सिंपल है, आपने क्या करना है, plt.title आपने प्लॉट के अंदर नहीं देना है. जितने भी अभी तक हमने एट्रीब्यूट्स किए हैं वो सारे हमने प्लॉट में डिस्क्राइब किए हैं. बट टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल जो है वो आप अलग से देंगे. तो अगर आपने टाइटल देना है plt.title, then you can give any title.
देन वी हैव एक्स लेबल, यानी एक्स एक्सेस का जो नाम है तो एक्स लेबल आप लेंगे, उसका नाम देंगे। फिर वाई एक्सेस का नाम है तो वाई लेबल लेंगे। एंड लीजेंड अगर आपको लेना है तो लीजेंड आपको लेना पड़ेगा। सो अब मैं इसमें सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ टाइटल। मैंने यहाँ लिखा PLT डॉट टाइटल और यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्स ऑफ द मंथ। नाउ आई रन दिस PLT, sorry. Now see, now this is the heading, this is the title for the plot. ये पूरे इसका आ गया है जो कि हमें बता रहा है कि इस प्लॉट का क्या है, डिस्क्राइब क्या कर रहा है ये। उसके बाद अगर हमें एक्स लेबल पर देना है यानी एक्स एक्सिस पर, तो हम एक्स लेबल देंगे और यहाँ पर हम देंगे कोई भी नाम। जैसे हमें यहाँ पे सेल्स दिख रहा है तो हम यहाँ सेल्स लेंगे एंड आई रन दिस। अब देखिए यहाँ पर सेल्स आ गया। उसके बाद मैंने दिया PLT डॉट वाई लेबल और यहाँ पर मैंने दिया मंथ। अब देखिए यहाँ पर मंथ आ गया। सही, आप इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पर कॉमा फॉन्ट साइज़ देकर। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ द टाइटल, एक्स लेबल एंड द वाई लेबल कैन बी गिवन। अब यहाँ पे मैं लीजेंड भी देती हूँ। लीजेंड के लिए सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे PLT डॉट लीजेंड। अब देखिए ज़रा लीजेंड जो मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि हाँ सॉरी, लीजेंड का यहाँ पर मैंने कुछ दिया नहीं है। मैंने यहाँ दिया सपोज़ मैंने दे दिया सिंगल एलिमेंट और देखिए ज़रा एस से मेरा ये आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्लॉट में एक ही लाइन है तो इसीलिए यहाँ पर लीजेंड हमारा ऐसे आया है। लीजेंड को आप जो है दो लाइन से भी यहाँ पर अगर शो करेंगे तो पूरा यहाँ पर आपको दिखाएगा। मैं अभी लेती हूँ इसे, मैं यहाँ पर देखिए इधर मैं क्या करती हूँ, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ। एक्स इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे रेंडमली कोई भी लिस्ट ले ली और एक मैंने वाई नाम का यहाँ पर लिस्ट ले लिया और उसमें मैंने ऐसे वैल्यू दे दिया। और उसके बाद मैंने दो प्लॉटिंग यहाँ पे की, दो लाइंस मैंने की ताकि मुझे अलग अलग वो नज़र आए। मैंने यहाँ पे लिया एक्स और उसका आर यानी कि रेड कलर की लाइन यहाँ पर आएगी। फिर यहाँ पे उसका लेबल क्या, नाम क्या आना चाहिए लीजेंड में। अगर एक ही लाइन है तो यहीं पर आप नाम दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास दो प्लॉटिंग आ रही है तो आपने यहाँ पर लेबल मेंशन करना है कि उन दोनों का लेबल क्या होगा अलग अलग। मैंने यहाँ पे लेबल दिया इसका फर्स्ट प्लॉट, ठीक है। और उसी के बाद मैंने इसी को कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लॉट में वाई को दिया और कलर मैंने यहाँ पर कर दिया मर्जेंटा और लेबल में मैंने यहाँ पर ले लिया सेकेंड। जब आप लीजेंड देंगे और आपके पास अगर दो लाइन या तीन लाइन वहाँ पर आ रही हैं तो हर एक के केस में आपने लेबल को मेंशन करना है, अदरवाइज सबके आगे सिंगल सिंगल आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये ऐसे दे दी। अब यहाँ से आप सिंगल को हटा लीजिए बिकॉज वी हैव टू लाइन्स है। यहाँ से मैंने सिंगल को हटा दिया। नाउ इफ़ आई रन दिस, अब रन करती देखिए क्या आया, मर्जेंटा लाइन का सेकंड आ गया और रेड कलर का फर्स्ट आ गया। देख रहे हैं, इस केस में मैंने लीजेंड को खाली छोड़ा है। अगर आपके पास एक ही लाइन है तो वहाँ पर लेबल देने की ज़रूरत नहीं, आप लेबल यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्लॉटिंग वहाँ पर हो रही है, देन इन दैट केस यू हैव टू मेंशन द लेबल इन ईच एंड एवरी प्लॉट एंड देन यू हैव टू यूज़ लीजेंड एम्प्टी। यहाँ पे खाली आपने ब्रैकेट देना। हाँ, लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है अपर लेफ़्ट पोजीशन में और यहाँ मैं पोजीशन चेंज करती हूँ। लोकेशन इज़ इक्वल्स टू मैंने दिया, मैं चाहती हूँ ये लोअर राइट साइड में आ जाए। और मैंने इसे रन किया तो ये लोअर राइट साइड में। सो इन दिस वे यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द लीजेंड ऑल्सो। सो these are the attributes by which we can customize the plot. There are various other attributes are also available, but in 12th class, in 12th tables, we have only these attributes. So we have a recap for this. recap ले लेते हैं इसका। एक सबसे पहले कलर एट्रीब्यूट है। कलर एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी प्लॉट के कलर को चेंज करने के लिए होता है।
आप यहाँ पर कलर को मेंशन करके या कलर डायरेक्ट कैरेक्टर लिखकर आप उसके प्लॉट के कलर को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप बार ग्राफ में कर रहे हैं तो बार ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि आपको कलर एट्रीब्यूट मेंशन करना है, वो खाली कैरेक्टर से नहीं चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लू होता है किसी भी प्लॉट का, और जहाँ आप कलर चेंज करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देखिए ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। हम या तो पूरा नाम लिख सकते हैं या फिर एक कैरेक्टर से उसको शो कर सकते हैं। देन वी हैव लाइन विड्थ एंड लाइन स्टाइल। Line style is used to change the style of the line, and line width is used to increase or decrease the width of the line. आप इन दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, कलर और लाइन स्टाइल को, उससे भी आपका कलर और लाइन स्टाइल दोनों ही चेंज हो जाएगा, बट इट शुड बी इन कैरेक्टर्स। फाइन। देन वी हैव मार्कर साइज टाइप एंड कलर। मार्कर जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि हमने प्लॉट किए हैं, उनकी शेप को चेंज करने के लिए, उनका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए, उनका एज कलर चेंज करने के लिए, यानी कि मार्कर का टाइप, मार्कर का साइज़ और कलर चेंज करने के लिए हमारे पास मार्कर, मार्कर साइज़, मार्कर एज कलर एट्रीब्यूट है। और इस तरीके से हम उसका डायमंड शेप या जो भी हम लेना चाहते हैं, दीज आर द वेरियस मार्कर वी हैव अवेलेबल। पॉइंट मार्कर, पिक्सल, सर्कल, ट्राइंगल, ट्राई अप मार्कर या डायमंड मार्कर, एक्स मार्कर, ये डिफरेंट मार्कर्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द टाइटल, लेबल एंड लीजेंड। टाइटल जो है वो एक मीनिंगफुल नेम देता है हमारे प्लॉट को। लेबल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टाइटल्स देता है, और लीजेंड जो है वो एरिया डिस्क्राइब करता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ। जितना भी हमारे ग्राफ में, जितने भी हमारे एरिया में एलिमेंट्स जितने भी हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करता है, तो उसके लिए हम लीजेंड को लेते हैं। और इतने ही एट्रीब्यूट्स हमें करने हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ ईच एंड एवरी वन। थैंक यू वेरी मच।